and welcome to NewsX. This is me, Brian Anthony Thomas, and you are watching a very exciting, a very interesting conversation that I will be having. Now, for this third phase, fourth phase, and fifth phase, I was reporting from Karnataka, Bengal, and now tomorrow is going to be a big day in the national capital. Elections is going to take place. Yes, the heat wave is at par. There's a lot of humid, it's hot, but again, the enthusiasm should not stop. The voters should come out and vote because it is your duty, it is your right to come out and choose your right candidate. And we are at Hanuman Mandir, which is said, rather believed, that it was established 3000 BC by the Pandavas. We'll show you the visuals. You can just have a look, have a glimpse of the very Hanuman Mandir, and this is the place that we are here, one of the very iconic locations in the national capital. But yes, without further ado, we will be going to the guest. We have Ayush sir on my left, and we have Shubhendu Shekhar sir in our right, who will give us perspective about the voter turnout, the issues in the national capital, how can it be better, and how can we resolve these issues, and also a more very intricate conversation that I will be having. Rather, my very first question to you would be, we've seen, tomorrow is the sixth phase that is starting in the national capital. The first 5 phases that we've seen, the voter turnout has not been that much. You've seen it being 60 to 64 maximum, and this has been a rather an alarming situation where the voter turnout has been less. So according to you, what can be the reason? Is it the heat wave, or what do you think are the probable reasons why the voter turnout has been less? Okay. So first thing, voter turnout is not that less. Like if you see, the numbers are not, it's only I think 2% or something less as compared to the previous election. So first thing is that. Second is it's heat wave पहले भी था, इस बार भी है. So heat wave has been there. Okay, but this time the main thing is that the agenda is not there. That main agenda, even for the opposition and even for the ruling party. What do you mean by the agenda here? Agenda, like the last time it was घर में घुस के मारेंगे, Pulwama. Okay, that was the agenda. You're talking about motivation. Motivation, yes, yes, you can say motivation also, but the narrative, okay, that for which the extra voters that would come out from the houses, that is not there. So that is, according to me, is the important reason why the voter turnout has been low, and I think this will be same in Delhi also. So, yeah. I mean, it's just 2 phases that is left. I would rather want you to urge the viewers also who are watching, there are so many first-time voters also, to just tell them to come out and vote because it is their right and it is a fundamental, a democratic right. Yeah, I think, yes, people should vote because it is once in a 5 years. So everything you can buy, you can get, but this is a very unique opportunity you get only in 5 years. So please go and vote. Yeah. Thank you. Sir, Shubhendu sir is also with us. Shubhendu sir, my very first question to you would be, firstly, welcome to NewsX. My very first question to you, you've seen that BJP has fielded 6 candidates, new candidates, and has retained 1, that is Manoj Tiwari. What, according to you, are the probable reason why there has been, 6 new candidates that has been brought and 1 that has been retained? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये एक बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है. हमारे कुछ लोगों को डिसाइड किया जाता है कि अब आप जाइए चुनाव लड़िए. कुछ लोगों को कहा जाता है आप संगठन का काम करिए. कुछ लोगों को कहा जाता है आप सोशल एक्टिविटीज़ करिए. कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप सोशल सर्विसेज करिए. तो ऐसा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है. आपने देखा पीछे भी एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे मध्य प्रदेश में. तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो संगठन में जो ऊपर के जो लोग हैं, वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं. और जिन लोगों को, जो लोग जैसे दिल्ली में ही आप देखिए कि हमारे 6 जो लोग यहाँ पे एमपी थे, उनको दूसरे राज्यों में जाकर बड़ा काम करने के लिए बोला गया. जैसे प्रवेश वर्मा जी, उनको बोला गया कि आप राजस्थान के चुनाव को देखिए, तो उनको एक बड़ा काम दिया गया. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये, हमारी पार्टी ने टिकट चेंज किए थे. और ये चेंज भी थोड़ा एक प्रोसेस होता रहना चाहिए. लोगों को यदि कोई एंटी इनकम्पेंसी है
यदि है तो वो भी इससे ख़त्म भी होती है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा चेंजेस रहते हैं। पार्टी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने 5 सालों में, और आगे भी जो लोग आए हैं 7 सीटें हम जीतेंगे तो वो भी पार्टी के साथ ज़मीन में जुड़ के लोगों के सेवा का कार्य करेंगे। तो एक काफ़ी एक हॉट टॉपिक में आ जाते हैं। सीएम का अरेस्ट बिकेम अ वेरी हॉट टॉपिक, और उसके बाद बेल भी मिल जाना। तो ये आपके हिसाब से ये गेम चेंजर बनेगा बीजेपी के लिए, या बीजेपी का वोट काटेगा? देखो, एक बात समझो, जो लोग लगातार अपने को कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, 2019 का चुनाव में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं लगा था। उस समय उनको टोटल वोट 18% मिले थे, कांग्रेस को 22% वोट मिले थे, लगभग 40% वोट हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को 56.8% वोट मिला था। मीन्स उन दोनों को भी जोड़ लें, उन दोनों लोगों को भी जोड़ लें तो भी हमारी बीजेपी को जो 56.8% वोट मिला वो अपने आप में एक बड़ा वोट था। और आने वाले समय में आप देखिएगा, अब की बार उनको उनका जो टोटल था 22 और 18 मिला के वो पूरा नहीं होगा, वो कहीं 20-22%, 25% तक टोटल वोट पे सिमट जाएंगे। कारण उन्होंने जो झूठ बोला, और उन्होंने जो झूठ बोला कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर आम आदमी हैं, पर अपने घर में 52 करोड़ रुपीस का उन्होंने वो लिया, क्या कहते हैं, घर में रेनोवेशन कराया। तो मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता समझ गई। कल का भी जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, जो जज का ऑब्जर्वेशन है, उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस को मिटाया, ख़राब किया, अपने डिजिटल एविडेंसेस को ख़त्म किया। तो आज जनता के बीच में ये तो समझ में आ गया सबको कि केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता हैं और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे कंडीशन में जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि केजरीवाल जेल के अंदर है या जेल के बाहर है। उन्होंने मन बना लिया है कि वो केजरीवाल के अगेंस्ट में वोट देंगे। Thank you. Before we go, there is a beauty of doing a show in Hanuman Mandir that you get to see a lot of monkeys as well. But yes, coming back to you also, it's going to be a follow-up question. Like, yes, according to you, in a very general and neutral perspective, if you talk about the political landscape as a whole in Delhi, do you think the arrest of Kejriwal will somewhere down the line affect the political scenario or landscape? Okay, so if you ask affect, maybe yes, but if you ask significantly affect, I think no. Because Why do you say that? Because issues are there. Like even BJP voters may think that no, केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था. But this issue can sway the election. If you see the vote percentage last time, 56.8 or 50, more than 56%. So they have to gain a lot of votes, and this issue is not that big that will sway the election in favor of them. So that is my opinion. Other than this, there are a lot of other issues. Maybe those issues can work in favor of AAP, Congress or BJP, but I don't see this single issue can sway the elections. Okay. Yeah. Sir, I'll also be asking you. Now, we've seen after the arrest of be it Manish Sisodia, Sanjay Singh, Hemant Soren, K. Kavita, and even the CM. The opposition are, they are launching attacks on the BJP, saying that they are bought by ED, CBI, BJP के अंडर में काम कर रही है, and BJP is fielding them and they are working according to the BJP. So the opposition is clearly going on saying that. You see all the press conference and everything. According to you, if I ask you, do you agree to this war of words that is happening, and आपका opinion क्या है इसमें? देखिए, ये एजेंसीज हैं, इन्होंने कुछ जांच करी, उस जांच करने के बाद कुछ रिजल्ट आए, और एजेंसीज ऐसा नहीं है कि एजेंसी 1% मान लेता हूँ मैं आपकी बात कि एजेंसीज को बीजेपी रन कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट रन कर रही है, पर कोर्ट तो बीजेपी नहीं रन कर रही है। कोर्ट में जब भी ये मामला जाता है और जजेस देखते हैं वो प्रूफ
कि यार सच में शराब घोटाले के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, 100 करोड़ एक एक एजेंसी से लिए उन्होंने, फिर उसका पैसा कहाँ गया, कहाँ कहाँ बांटा। जब कोर्ट को भी ऐसा पता लगता है और उसके पास जब प्रूफ देखते हैं तो वो लगातार इन लोगों की बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो एजेंसीज हैं वो अपने ईमानदारी से काम कर रही हैं, कोर्ट अपना पालन कर रहा है, और कोर्ट ने जो बताया कि उनको एक टेम्परेरी पैरोल पे छोड़ा है, वो रोते रहते और ये कहते कि जनाब मैं तो जेल में था, वरना मैं बाहर होता तो दिल्ली में 7 सीट जीत जाता। तो हमको लगता है कि एक बहुत अच्छा काम किया कि कोर्ट ने उनको, जैसे अपराधियों को पैरोल दी जाती है बहुत सारे कारणों के कारण, उनको भी पैरोल दिया। आज उन्होंने पूरी दम लगा दी, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा दिल्ली में। लोग जो स्थिति उनको जेल के अंदर रह के थी, जो एक इमोशनल वो एक डेवलप कर रहे थे कि जेल में है कुछ तो वोट दे दो, जेल का जवाब हम वोट से देंगे, कोई भी चीज़ नहीं चल रही। आज समझने की बात है कि जो जनता है वो ठगी सी महसूस करती है कि ये वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस को गाली देते हुए कांग्रेस के वोट शिफ्ट किए आम आदमी पार्टी में। अब वोट जब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए तो वो जब इन्होंने गठबंधन किया तो ये वही वोट समझता है कि यार इनके कहने पे हमने कांग्रेस तो छोड़ी, पर ये लोग तो वापस कांग्रेस से आके गठबंधन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पंजाब में सौतेले भाई हैं, मतलब अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और दिल्ली में मौसेरे भाई हो गए हैं। तो जनता को लगता है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए व्यक्तिगत पार्टी हैं। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी भी उनके परमानेंट लाइफ लॉन्ग संयोजक रहेंगे, कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी कौन लोग हैं? अखिलेश यादव, जिनको आम आदमी पार्टी के ये केजरीवाल जी गाली देते रहते, लालू यादव, वो लोग, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सबको उन्होंने गाली दी है, कपिल सिब्बल से लेके हर व्यक्ति तक। आज उनके वही लोग वकील भी हैं। मेरा मानना है कि जनता ने इनका मुख, उनका चेहरा समझ लिया है, और ऐसे कंडीशन पे मेरे को लगता है ये जो 20% में टोटल वोट कह रहा हूँ, 70 से 80% वोट भाजपा को मिलेगा इस बार, और दिल्ली में 7 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीतूंगा, क्योंकि कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा। कांग्रेस के सभी लोग, जितना भी यहाँ का फंक्शनरीज था, प्रेसिडेंट से लेके ब्लॉक लेवल के पर्सन तक, वो सब बीजेपी ज्वाइन कर गए। आम आदमी पार्टी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर काम नहीं कर रही। तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है, मेरे को लगता है कि हमारे लिए बड़ा फेवरेबल है। हम 7 सीटों पर एक सर, एक फॉलोअप क्वेश्चन भी रहेगा। अच्छा जीत के आ गए। एक और फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा। अभी आपने ओपोजिशन का बात बोला, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का, तो अगर हम इंडिया अलायंस का बात करें, महागठबंधन बोला जा रहा है, तो दिल्ली में कितना इम्पैक्टफुल रहेगा आपके हिसाब से? आपको कहीं दिखा क्या? कोई भी नहीं दिखा। कांग्रेस के एक भी शो, कांग्रेस के शो में आम आदमी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे, कांग्रेस के शो में कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। आप बताइए ना, सोनिया गांधी जी नहीं पहुंची, उन्होंने, प्रियंका गांधी एक बार भी नहीं आई, उनका शो में नाम था। राहुल गांधी कल थोड़ी रास्ते में दिखाई दिए, पर वो भी ज़्यादा नहीं रहे। तो कांग्रेस खुद बड़ा उत्साही नहीं है दिल्ली को लेके, उनको लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। इसीलिए उदित राज और कन्हैया कुमार ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे, कैंडिडेट भी हार मान के बैठा हुआ है। कल 11 साढ़े 11 बजे तक आप देख लीजिएगा, लगभग एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें 2500 बूथ होते हैं, और 2500 बूथ में कोई भी व्यक्ति, उनके बूथ पे 2500 लोग नहीं मिलेंगे उनको जो बूथ के अंदर बैठ जाएं, और 2500 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो बूथ के बाहर टेबल पे बैठ जाएं। कल आपको 11 बजे हम आपको दिल्ली का इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। You know, he was very confident about tomorrow's results, but I'll ask you the same question. You know, the Mahaghathbandhan that has been formed to fight the Prime Minister, to fight the BJP. Do you think this India Alliance, and it's even very prominent in the national capital also, so do you think this will cut the BJP vote share, or what is your opinion on this? Okay. I think you need to understand that it is right कि आम आदमी पार्टी जो वोट काट के लाई स्टार्टिंग से, वो कांग्रेस के अगेंस्ट में एक पार्टी है। सो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे, दैट इज़ ट्रू, बट दिस इलेक्शन इज़ मोदी और नो मोदी। तो वो वाला जो है कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाएंगे और आम आदमी के पार्टी के वोट कांग्रेस को मिल जाएंगे, दैट आई सी हैपनिंग देयर।
And so this did not happen. If you talk about UP, आपका जो लास्ट इलेक्शन हुआ था तो उसमें सपा और बसपा में अलायंस हुआ था और वहाँ पे लेकिन उनके ऐड अप नहीं हुए वोट्स, इवन दोनों के वोट्स शेयर घट गया था. लेकिन यहाँ पे इट इज़ हैपनिंग बिकॉज इट इज़ मोदी वर्सेस नो मोदी, है ना. तो वो वाली चीज़ हो रही है, बट स्टिल वो ऐड होके क्या उनसे आगे निकल पाएंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन, बिकॉज उनका वोट परसेंट लास्ट टाइम अगेन. अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से ये जो इनका कैंपेन भी चल रहा है जेल का जवाब वोट से, एक सिंपैथी मिलने का, वो दे आर ट्राइंग टू गेन सिंपैथी रादर, तो डू यू थिंक यू नो दिस सिंपैथी विल प्ले अ रोल इन द वोटर्स? डू यू थिंक दैट विल हेल्प देम इन द सबकॉन्शियस व्हाइल दे गो आउट टू वोट? आई थिंक यस, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट नॉट ऑन द कि वही अगेन आई विल से कि नॉट स्वेइंग द इलेक्शंस, क्योंकि सिंपैथी है, राइट. इवन बीजेपी वोटर्स थिंक, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ इनको गलत किया, बट देयर इज़ कन्फ्यूज़न ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस स्वाति मालीवाल केस ऑल्सो. एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि यार ये बंदा सही में सही बंदा है या नहीं है. सो देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न, सो दैट्स वाई इट माइट अफेक्ट. Not on So that. you are saying that the Swati Maliwal case will also play a big role, or Not a, I think not a big role, but it will add up to the confusion. जो confusion चल रहा है एक मार्केट में कि केजरीवाल सही बंदा है या नहीं है, वो उसमें add up हो जाएगी चीज़ें. Sir, Shubhendu sir, I think I feel I'll be asking BJP's very favorite question. Like from the starting, the BJP has been saying up ki bar 400 par. You know, the BJP is confident about it. I'm sure you are also very confident about it. Now, if I talk about this campaign, to ask and to get your opinion, what do you feel about this, you know, campaign and slogan that has been given by the BJP? But also, I'll ask you another. There's a follow-up. जो voters है, if you talk about national capital or entire the country, they're coming out to vote. According to you, what are they thinking, the voters? Is it, you know, the issues? Is it the Modi factor? They're seeing the candidates, they're seeing the party. आपके हिसाब से क्या वोटर के दिमाग में है या क्या वोटर के दिमाग में होगा जब वो कल मतदान करने जाएंगे? देखिए, जो भी वोट कल करने जाएगा वो मोदी जी के नाम पर कल जाएगा वोट करने के लिए. उसने देखा कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ, किस तरीके से पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर रेलवे इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया, दुनिया का हर जगह पे सफाई दिखने लगी, लोगों ने सफाई को एक बड़ा नाम दिया. वो इस बात को वोट देगा कि किस तरीके से शौचालय बनाए गए, वो इस बात को देखेगा कि वो 11वीं अर्थव्यवस्था से किस तरीके से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आया और अब इस बार 3वीं अर्थव्यवस्था के ऊपर जा रहा है. वो इस बात को देखेगा कि जहां पहले खाली 70-72 एयरपोर्ट हुआ करते थे 70 सालों में, वहीं 10 सालों में उसके डबल हो गए. वो ये देखेगा जहाँ पर 3-4 किलोमीटर का रोड पर डे बनाती थी कांग्रेस की सरकार, हम 80 से 90 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बना रहे हैं. वो ये देखेगा कि गांव-गांव में भारत का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली नहीं पहुंच गई हो, जहां पे जल से नल पहुंच चुका है और बाकी जो थोड़ा बहुत जगह बची है वहां पे नल से जल पहुंच रहा है. इन सब चीज़ों को कल वो वोट करेगा. दिल्ली के अंदर जो लोग वोट करने जा रहे हैं, भारत को विकास के लिए जा रहे हैं, विकसित भारत के लिए जा रहे हैं, श्री राम मंदिर के लिए जा रहे हैं जो 500 साल से पेंडिंग था. तो मेरा मानना है कल जब व्यक्ति वहाँ पे वोट देने जाएगा और उसके अंदर जो अंडर करंट है भगवान राम का मंदिर बनने का, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट कल आने वाला है. और जैसा कि अभी आपने प्रश्न हमारे साथी से पूछा था, स्वाति मालीवाल, जो पढ़ा लिखा तबका है वो सोचता है कि 2004 से स्वाति मालीवाल लगभग 20 साल से स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के साथ में है और केजरीवाल जी का बड़ा अच्छा कनेक्ट है. आपने देखा होगा पीछे कि वो गोलगप्पे खिला रही हैं उनको एक ठेले पे खड़े होके, ऐसा प्यार देखा होगा उनको. उन्होंने दिल्ली में वुमेन जो उनका सेल है उसकी चेयरपर्सन बना दिया था, फिर संसद में भी भेज दिया. ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होती है. वही स्वाति मालीवाल आके कहती है कि उनके पीए ने हमको इतना मारा और ये हालत थी. और उनकी जो आप FIR पढ़ेंगे तो बड़ा दुख होगा कि उसने लिखा लातों से मारा गया, चाटा मारा गया.
कल उनका ANI पे रिपोर्ट्स भी हुई है, उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से उनके साथ क्या घटना हुई। पेल्विस एरियाज़ में भी उनको लातों से मारा गया, मेडिकल रिपोर्ट्स बन के आई हैं। तो जो पढ़ा लिखा महिलाओं का एक ग्रुप है जो बार बार इस बात से बहुत दुखी है कि ऐसा उनके घर पे भी हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो सर ये एक मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी रहेगा कि आपने अभी स्वाति मालेवाल का जो इंसिडेंट बताया है, दिल्ली रेप कैपिटल भी जाना जाता है, और अभी जो आपने स्वाति मालेवाल वाला जो इंसिडेंट आपने बताया, कि आपके हिसाब से क्या विमेन सेफ्टी या विमेन सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवाल है दिल्ली नेशनल कैपिटल में? देखिए, दो टाइप की केसेस आ रहे हैं। एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड रेप हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल का केस समझे आप, संदेश खाली का केस आपने देखा, ऑर्गेनाइज तरीके से वर्षों से बहुत सारे लोगों के साथ रेप हो रहा था। जब वो फूटा तो वो आपने संदेश खाली का केस देखा। एक जो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे जो रेप हो रहे हैं, दोनों रेप हैं, पर एक ऑर्गेनाइज रेप है और एक जो राह चलते हुए किसी को कोई ऐसी लड़की मिल गई, किसी को कोई बदतमीजी कर दी, कोई छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सरकार को इस पर एक बहुत बड़ा कानून बनाना चाहिए, बड़ा टफ कानून बनाना चाहिए। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए खाली कानून में ये फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग ये रेपिस्ट हैं, इसको कानून इनके लिए इतना कड़ा हो कि इनको डर लगे कुछ ऐसी तरीके की एक्टिविटी करने के लिए। हम और आप कितनी बार पुलिस पे आप 10 केसेस जाते हैं रेप के, पुलिस वाले पकड़ के कोर्ट में ले जाते हैं और वहाँ से बेल मिल जाती है। 10 साल केस चलता है। इसका कानून होना चाहिए 30 डेज़ के अंदर इस पे डिसीजन आए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो मेरे को लगता है कि ये लोग जो करने वाले लोग हैं वो जाएंगे, और स्कूल के अंदर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी भी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो। आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन। यू नो you've seen like he said about the women issues, the women, safety being a big question here. Now there are other issues also in the national capital. You see the development, and I want to ask you as a resident of the national capital, do you see the development work has been done? You talk about the Yamuna water issue, the water scarcity issue, or the traffic being a problem, the metro connectivity. So do you see, as a resident, as someone, as a commuter, do you see these developments being answered or being worked on under the Delhi government rule? See, development is always done, but people are never satisfied. So I cannot say कि development कितना होना चाहिए था, कितना हुआ है. But if you talk about the issue in the national capital, जो कि प्रभावित करते हैं आपके national मुद्दे को, so those issues are different. Because if you see from 1999, all the elections जो भी दिल्ली में जीता है वो सरकार उन्होंने बनाई है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि दिल्ली में जीता है, स्वे किया इलेक्शन को, 7 में से 7 सीट आई है, एक बार खाली 6 सीट्स आई है, बाकी हर बार 7 की 7 सीट आई। सो दिल्ली डजंट वोट इन द फैशन कि यहाँ की लोकल इश्यूज़ क्या है। एटलीस्ट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन वो नेशनल इश्यूज़ पे वोट करते हैं। दिल्ली वाले नेशनल जब इलेक्शन होता है तो नेशनल इशू पे करते हैं, जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो दिल्ली के इश्यूज़ पे करते हैं। सो दिस हैज़ बीन देयर, एंड आई थिंक सो if those issues are bigger for BJP or opposition, वो decide करेगी दिल्ली की जनता, but the issues will be national. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Ayush sir. Thank you so much, Shubhendu sir, for giving us your valuable time. So yes, viewers, to everyone who are watching us live, you've heard a very intricate, a very pivotal conversation that was much needed. We spoke about voter turnout. We spoke about a lot of issues that will take place, what is in their voters' mind. And we from NewsX also, we keep urging, like I have been keeping urging to all the people to come out and vote, because it is your right. It is your fundamental right to come out and vote. And we from NewsX also urge you to cast your vote, which is happening tomorrow. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off for NewsX Delhi.